Very good evening and welcome. This is Verified Ground Report Edition, which is coming to you from Morbi in Gujarat, which saw a massive tragedy just 2 days back. I want to start my show today by referring to these two images. Behind me is the statue of revolutionary legend Bhagat Singh, who is in fact, this circle is the Bhagat Singh circle, and right on this circle is the civil hospital of Morbi. And why I wanted to start with this is because the kind of reportage that we have seen, the kind of narrative that we have seen, the kind of tragedy that we have seen, and post that tragedy, the kind of circus that we have seen, I was just wondering, what would Bhagat Singh think at a time like this? This civil hospital today was, ladies and gentlemen, a very, very important spot where Prime Minister Narendra Modi also visited, met those who in fact are injured. They were lucky survivors because more than 135 people have lost their life in this incident that took place on Sunday evening. 2 to 3 people are still said to be missing. We got reports, few ground reports from and conversations of relatives of those who were missing as well yesterday. And there are still many unanswered questions. People in Morbi at every chowk, every chauraha are talking about the fact whether this entire investigation where 9 people have been arrested is just an eyewash, because the main culprits, possibly the owners of the company, people from the municipality, what about them? Will they go scot-free? We'll talk more about this and what people of Morbi think, but I would like to start today because I've been continuously since late last night, I've been reporting from this civil hospital where you see a posse of policemen right now guarding the main door. We were in fact escorted out. We were not allowed. No journalist is now allowed to go inside and shoot. And the reason for that is that we just reported and asked a few questions about why a hurried haste, in fact, was shown in trying to paint this a day after there were more than 130 dead bodies here at this hospital. There were people still scampering for their relatives. There were people, those who were still injured, because the Prime Minister was visiting. The Prime Minister wanted to come and show his sympathies, speak to the people. But was it necessary for the government of Gujarat to try and hide the marks of this hospital to give a sense of what the real true picture of this hospital is? And does that only stop at the hospital? I just want to start by telling you today, late last night, there were water filters which were brought in to replace, in fact, on the ferry floor where the Prime Minister went to meet the people. And after the Prime Minister left, I went inside and I saw classic Indian machinery, government machinery at work. They just wanted to impress the Prime Minister by putting those water filters, but they forgot to do the most essential thing that was required of them. Make sure that those facilities were being made for the people. I will just tell you this water cooler story, which today is the talk of the town. Just take a look. This is a brand new water cooler. A lot of people who are watching the broadcast right now would think, well, even if it is for the VVIP visit, at least the hospital has got a brand new water cooler. I will show you something very, very interesting. This brand new water cooler is for the patients to use to drink water from. Now, see the magic. You press this, there is no water. You press this, there is no water. You keep pressing this, there is no water. It's a brand new water cooler placed here last night. There is no water in this water cooler, and I'll tell you the reason why it is not there. Because this water cooler has not been connected. You can see the lock there. It's still there. The wires are hanging. Just a short while back, we were here in the Morbi hospital and we showed you the report of this water cooler, a new water cooler which was put here ahead of the Prime Minister's visit. This water cooler was not functional. It was not connected. At least there has been a little impact of our reporting. In just 2 hours of this news being reported by NDTV, finally, there is some good news. This water cooler is functioning. They have attached it to an electrical socket. There is water, in fact, which has been also, the connection has also been done. And finally, there is water in this water cooler. Now, people, those who are here, at least for the Prime Minister's visit, one thing which has come out, at least for the people of this floor, on the first floor of the Morbi hospital,
there is now a functioning new water cooler which is going to serve them for some time. Well, I'm glad that at least those people will get water. The patients and their relatives would be able to drink that water from that cooler. But this is something that possibly the local administration and the police did not like. Just take a look at these pictures. While we were reporting, a lot of policemen, including led by, in fact, an SP level officer who is SP Rajkot Rural, he came and escorted us out of that ward. They didn't want us to continue our report and show you more pictures of how they tried to gloss over the situation and the condition of that hospital. And that's why we are standing outside and no media is allowed. Now, meanwhile, ladies and gentlemen, today was the day of reflection. I tried to speak, and in fact, I spoke to residents of Morbi, people, those who helped in the rescue, people, doctors, those who helped initially, to try and understand the impact of this tragedy, to try and understand how Morbi is now coping up with a disaster of this magnitude. Take a look. It's been 2 days since massive tragedy struck Morbi. More than 135 people dead, few still missing, many others injured. The city is still reeling, is still trying to come to the terms of a huge loss of life and the impact it has had on the people of Morbi. I am right now outside the civil hospital. This is where today Prime Minister Narendra Modi came, met the patients, those who are here. And because for the last 2 days I've been continuously reporting from the ground, I just wanted to get a sense from the people of Morbi, many of them who actively saw what happened on Sunday, contributed with their own, in their own way to try and help as many people as they could. Just to understand, just to get a sense of how they are dealing with this tragedy and, what is it that they expect from the government and the administration. It's a mixed set of people. The gentleman that you see here is a former Indian Army, out because of medical basis, and he helps all these young kids for selection in the army, help them with them physical and what to do. So he was in fact on that very day along with his team helping out people, those who had fallen after the bridge collapse. We also have some citizens from Morbi, some doctors in fact, very kind of them to join us, who treated the patients on that very day. Let me start by asking our friends here. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप फौज में थे, तो आप बहुत यंग हैं, तो फौज से क्यों बाहर आए आप? सर, मैं एक हादसे का शिकार हो गया था, जैसे लैंडस्लाइड आपने अभी सुना होगा मणिपुर में हुआ, उसी तरह 2019 में उसके कारण मुझे न्यूरोलॉजिस प्रॉब्लम हुआ और 1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद पूरा रिपोर्ट तैयार मेडिकल ग्राउंड से फिर आपको बाहर, कौन सी यूनिट में थे आप? सर, मैं वैसे मैकेनाइज्ड फोर्स से बिलोंग करता हूँ। अभी क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं अभी एक्स आर्मीमैन खामड़े जिग्नेश हूँ और इन लोगों को फ्री में आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ। मोरबी में ही रहते हैं आप? मोरबी के ही हैं? नहीं, मैं बाहर से अप डाउन करके आता हूँ, यहाँ 14 किलोमीटर दूर से। अच्छा। रंगपुर से, और इन लोगों को फ्री में। आप सब लोग मोरबी से ही हैं? मोरबी डिस्ट्रिक्ट से हैं। फौज में जाने का मन है? यस। अब अग्निवीर का रास्ता अपनाओगे? कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? 1.5 महीना हो गया। क्या क्या करते हो ट्रेनिंग में? लॉन्ग रनिंग 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ते हो? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि आप लोग संडे को, आप कह रहे थे कि आप दौड़ वहीं से लगाते हैं, ब्रिज के आसपास से आपका रास्ता होता है, तो क्या संडे को हुआ और आप लोगों ने लोगों की जान बचाई? जैसे सर मैंने आपको बताया कि मैं इन लोगों को फ्री में आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ। हमारा नॉर्मल रूट वही है, जैसे कलेक्टर ऑफिस के पीछे से हम आते हैं और वो रोड फॉलो करके जाते हैं। उस दिन हम 20-25 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग रखा था मैं परेड, तो लॉन्ग रनिंग करके हम वापस लौट रहे थे और जैसे मैं देख रहा हूँ मयूर ब्रिज के ऊपर बहुत सारी भीड़ है, मुझे लगा आम सुसाइड किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, वहाँ से लोग नॉर्मली करते हैं। लेकिन जब मेरी नज़र पुल से हट के झुलता पुल की ओर जाती है, पुल आधा टूटा था बीच में से और मैं पुल के बीचों बीच था, जो मयूर ब्रिज है वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। मैंने अपने लड़कों को बोला जितनी तेज़ी से दौड़ सकते हो आप उतनी तेज़ी से दौड़े और जितनी जानें बचाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उतनी बचाने की कोशिश करें। पानी में उतर गए थे आप लोग? हाँ जी सर। कौन आप में से कोई? हम 3 लोग पानी में उतरे थे, मैं और ये और एक दूसरा ये पानी में उतरे थे हम, और ये सर जी ऊपर टूटे हुए पुल पे थे। हम पानी से रस्सा खींच के लोगों को बाहर काट रहे थे और ये सर जी ऊपर से सबको बाहर काट रहे थे। वहाँ सम सिविल लोग भी वहाँ पर थे और थोड़े पुलिस वाले भी वहाँ पर थे अंदर।
उस महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे वहाँ पर? सबसे पहले हमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की हेल्प की, फिर सर जी ने लोग डूब रहे थे पानी में? लोग डूब रहे थे पानी में, पर जितना हो सका उतना छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की पहले कितने लोगों को आप निकाल पाए, कितने लोगों की मदद कर पाए? 80-90 लोगों को जीवित निकाल पाए आप? जीवित निकाला। अफरा तफरी होगी उस समय तो वहाँ पर? बहुत हमारी जान पे खेल के वहाँ पर ऊपर से कूद लगाई पहले, फिर जितना हो सके वो अंदर उतना कीचड़ भी उतना था, पग भी हमारे 25 किलोमीटर रनिंग करके आया था, पग भी हमारे नस भी ब्लॉक हो चुकी थी, फिर भी हमने रस्से से जितनी हो सके उतनी जानी बचाई। बहुत कमाल का काम किया आप लोगों ने। लेकिन इस ट्रेजेडी का मैं असर आपसे जानने से पहले ये समझना चाहता हूँ, आप लोगों ने डॉक्टर्स हैं आप, क्या नाम है सर आपका और कहाँ पे आपका, किस अस्पताल में काम करते हैं? Dr. Sharad Patel. I am from Krishna Multispeciality Hospital. I got a call around 6:35. There is a mass casualty on Hanging Bridge. So as we are two person, my colleague and me, we rushed there, and we don't. You went to the spot? Yeah, spot on bike. So there is one child. We have bring him from water, and there is a gasping, and basically we did all treatment, and we bring him directly to Krishna, started oxygen, and we are around. How many patients, कितने लोग हैं अभी आपके अस्पताल में उस First day, at the time of casualty, we attended almost 28 patients, and there is a major injury around 13 patients. Okay. We admitted around 8 patients, and we save around 15 patients from this mass casualty. Were there deaths as well in your hospital? Yeah. How many deaths? 12. 12 people died. Yeah. Ma'am, you are also a doctor. आप कहाँ पर हैं? मैं नक्षत्र हॉस्पिटल में हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका पटेल है। आई एम एमडी फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। सो जब ये हमको बात सुनने में आई थी, वी प्लान्ड कि 2 डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में रहे थे, and me and another ortho surgeon is came to civil hospital just to help civil doctors because so many patients were coming and so many rush was there, so shortage of doctors were also there. So हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया था और यहाँ पे हमने इमरजेंसीज में टैकल किया था, जितने पेशेंट्स की लाइफ सेव हो सके उतने पेशेंट्स की लाइफ सेव करने की ट्राई किया था। आप लोगों ने कभी मेडिकल की जब पढ़ाई भी करते होंगे, इस तरह का सिनेरियो सोचा था कि इतनी मास कैजुअलिटीज इस तरह की कोई चीज़ होगी जो आप लोगों को डील करनी पड़ेगी? एक्चुअली मास कैजुअलिटीज़ हमने पढ़ने में आता था कि ऐसे ऐसे होता है, उसको ऐसे टैकल करना होता है, बट हाँ इन लाइफ आई हैड सीन फर्स्ट टाइम कि इतने सारे पीपल और इतने सारे पेशेंट्स इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में, और सिविल इमरजेंसी में ऐसा था रेशियो कि 5 पीपल पे मतलब 5 पेशेंट्स आते थे, उसमें से 3 ब्रॉड डेड आते थे। देयर ओनली रात को? हाँ, उस रात को 2 पेशेंट्स ऐसे थे जो लाइव आते थे, जिसको हमें बचाना था, क्रिटिकल कंडीशन में से बाहर निकालना था। सो व्हाट वी वर डूइंग इज़ कि उनको क्रिटिकल कंडीशंस में से बाहर निकालने की ट्राई करते थे, फिर उनको रेफ़र कर देते थे सिविल में या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी वैकेंसीज मिल सके वहाँ पे हम रेफ़र कर रहे थे। और जो दूसरे 2 डॉक्टर्स थे जो हमारी हॉस्पिटल में ऑलरेडी थे, वो वहाँ पे रेफ़र किए हुए पेशेंट को टैकल करके उनको ट्रीट कर रहे थे। हाउ मैम, यू आर ऑल्सो डॉक्टर, आप सिविल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर धरती पटेल। आप यहाँ पे जूनियर रेसिडेंट हैं? रेसिडेंट, यस। उस रात ड्यूटी पे थी आप? हाँ, उसी दिन मैं ड्यूटी पे थी, इवनिंग ड्यूटी थी मेरा। और जैसे जब मैं शुरुआत में सुना आपने और इतने सारे लोग और इतने सारे पेशेंट्स आने शुरू हुए, काफ़ी सारे, जैसे उन्होंने बताया कि डेड पेशेंट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स कैसे डील करते हैं इससे? मतलब आप लोगों को शुरुआत में कैसे आपने इससे डील करना शुरू किया? जैसे हमें पता लगा कि मास कैजुअलिटी है तो हम सब प्रिपेयर हो गए थे पहले से, सब जो नेसेसरी चीज़ें थी वो सारी कलेक्ट करने लगे थे। जैसे पेशेंट आना स्टार्ट हुए, डॉक्टर सब आ गए थे। जैसे पेशेंट सही है तो उनको स्टेबल है तो उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे थे, और फ्रैक्चर वगैरह है तो उनको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे। बाकी सबको पॉइंट है ये वो सब स्टार्ट कर दिया था। जैसे ब्रॉड डेड आ रहे थे तो उनको अलग से रख रहे थे। ऐसे बहुत पैनिक माहौल हो गया था, पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, राजकोट वाले, ये सारे डॉक्टर सब आ गए थे, तो इसलिए इतना सफिशिएंट थे डॉक्टर्स वहाँ पर? पूरे सफिशिएंट थे और सबने बहुत सारा सपोर्ट किया, तो अच्छे से सब मैनेज हो गया था। जब चारों तरफ, आप भी डॉक्टर हैं, आप नक्षत्र हॉस्पिटल में काम करते हैं, जब चारों तरफ इतनी पैनिक होती है, उस रात का मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, और बॉडीज़ भी आ रही होंगी, लोग भी आ रहे होंगे, कुछ क्रिटिकली इंजर्ड होंगे, कुछ कम इंजर्ड होंगे, तो सिचुएशन मतलब मेंटली आप लोग कैसे, क्योंकि
इतनी सारी बॉडीज के बीच में और वहीं पे आप काम कर रहे हैं, लोगों की चीख पुकार है, तो कैसे आपने उस दिन डील किया? पहले तो क्या है कि जो लोग जिसको क्रिटिकल था ना उस पे हमने फोकस किया था। किसी किसी को क्या है कि ऑक्सीजन का कमी रह रहा था, तो उन लोगों को पहले टैकल किया था। जो इंजरीज किस तरह की थी? मतलब क्या लोग डूबे थे उसकी वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं? हाँ, तो डूबने की वजह से ज़्यादा था। किसी किसी को जो फेफड़े में पानी होता है, जो पी जाते हैं पानी, उनकी वजह से जो प्लूरल कंफ्यूजन वगैरह होता है, वैसे भी पेशेंट आए थे। यहाँ से जो एक पेशेंट था, मैंने बोला कि क्रिटिकल था, तो हमने अपने पर्सनल अस्पताल में उनका टोटली फ्री इलाज, सीटी स्कैन से लेके रिपोर्टिंग, एडमिशन, आईसीयू टोटली फ्री में करवाया था। मगर क्या है कि किसी किसी को है ना ज़्यादा दिक्कत थी, उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ा था। तो पहले उन लोगों को प्रायोरिटी दिया, बाद में जो ओपीडी बेस्ड थे कि जो दवाई से हो सकता है उनको भी टैकल किया था। और कई सारे डॉक्टर थे, नहीं थे, उनके लिए बाहर से भी डॉक्टर आए थे, तो सही तरह से टैकल तो हो गया था। मगर क्या है कि ब्रॉड डेथ भी इतने आ रहे थे, छोटे बच्चे ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा मुश्किल छोटे बच्चों का शायद इस तरह से उनकी बॉडीज़ को देखना और उन्हें ट्रीट करना होगा। तो पेशेंट्स जिस तरह के थे, कई सारे परिवार हैं जो पूरे परिवार इस हादसे में चले गए। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी यहीं काम करते हैं? जी सर। कब से सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं आप? जूनियर रेजिडेंट हैं? नहीं, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। आप मेडिकल पिछले ऑफिसर? दो साल से यहाँ मोरबी सिविल में काम करता हूँ। तो क्या सिचुएशन थी सर उस दिन? उस तरफ बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे, उसमें से ज़्यादातर डेड बॉडी थी। मगर पिछले कम टाइम में जब मैनेजमेंट करना होता है तब बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह मोरबी की पब्लिक और सामाजिक कार्यकर्ता उस दिन उसने सपोर्ट किया है, वो मैंने पहली बार देखा है मोरबी में। इतना सारा सपोर्ट, डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे थे, मगर जनरल पब्लिक जो होती है वो इतना सारा सपोर्ट किया है कि तब जाके पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन तब होती है। दुख तो होता है, मगर जब साथ में सब खड़े होते हैं तब हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दिस? इसका इम्पैक्ट अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ तो इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे पर्सनली किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है? क्योंकि ये घटना ऐसी नहीं है कि शायद जो लोग आसानी से भुला दें या दिमाग से निकल जाए उनके। उस नाइट को मैं सोई नहीं थी, बिकॉज मैं यहाँ पे रात को 2-3 बजे तक हम लोग ये इमरजेंसी टैकल कर रहे थे। उसके बाद सो मैनी पेशेंट्स वेर इन आईसीयू, जिनके लिए भी हमको ट्रीटमेंट करना था, उनको बचाना था। एक ये भी डर था कि जितने हैं पेशेंट्स अपने पास आए हैं, जिनको ट्रीटमेंट हमने दिया है, उसमें से कोई अभी डेड ना हो जाए, उनको मैक्सिमम ट्राई करके बचाना था। एक वो स्ट्रेस प्लस ये जो एनवायरनमेंट देखा हुआ था, इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे ब्रॉड डेड पेशेंट्स, तो वो नाइट को मैं नहीं सो पाई थी। और आई थिंक मेरे जितने भी कलीग डॉक्टर्स है, सबके साथ बात हुआ था, सबका यही कहना था कि दिस वॉज अ फुल ऑन इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ? इतने पूरा एकदम माहौल ख़राब था, क्योंकि मैक्सिमम कैजुअलिटी बच्चों में देखी गई थी। मोर देन 45, इवन अराउंड 12 AM तक तो 45 बच्चे की डेड बॉडी हम लोगों ने चेक कर लिया था कि उसमें कुछ है ही नहीं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। आप एडवोकेट हैं, मोरबी में रहते हैं, शहर के लिए ये घटना कितनी बड़ी घटना है? शहर पे इसका क्या इम्पैक्ट है? शहर पे सर इसका इम्पैक्ट है कि जो अभी सब ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पुल है वहाँ जाने के लिए डर रहे आदमी लोग, क्योंकि ये जो हादसा हुआ कम से कम इस हादसे में ऑफिशियली 134 की डेथ हो गई है। उसके परिवार आई थिंक 135 जितने हो गए, बाकी का बचा हुआ। अभी आई थिंक 2 लोग लापता, उसका रेस्क्यू हो रहा है। कहीं ना कहीं पे ये जो तंत्र है उसकी बेदरकारी है, कॉन्ट्रैक्टर की बेदरकारी है, उसकी वजह से ये निर्दोष लोगों की जान गई है। फिर भी अभी जो लेट नाइट इतना बड़ा प्रेशर बढ़ा है, पॉलिटिकली सब इश्यू हो गए, सब CM आ गए, PM साहब आज आ गए, गृह मंत्री आज आ गए, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा। तो लेट नाइट को FIR हुई। FIR में फर्स्ट एक्यूज का नाम ये है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट रखा था वो एजेंसी, सेकंड एक्यूज का नाम है कि मैनेजमेंट वाले, और थर्ड एक्यूज है कि जो को एक्यूज के निवेदन से जो ओपन हो गए, एक्यूज के नेम हो गए, उसका होगा। पर सही में FIR करनी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी बनती है सर? फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है पालिका की, कलेक्टर की बनती है। अगर जो सही टाइम पे पालिका ने वहाँ चेकिंग किया होता,
फिटनेस सर्टिफिकेट दिया होता तो ये घटना ही नहीं बनती। अगर देख लो सर, जिम्मेदारी आपको लगती है कि पालिका की है? हाँ, पालिका की है। कुछ लोगों को 110%। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी यहाँ पर थे, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि सही हो रही है, क्योंकि जहाँ से शुरू करना चाहिए था वहाँ से नहीं किया, एंड से पकड़ा है। मतलब पीछे से जो छोटे कामदार है, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वर्कर थे, नहीं उसका गलती है, लेकिन उसका गलती क्या है कि उसको तो मालूम ही नहीं है, उसको मैनेजमेंट ने बताया नहीं कि इतने लोगों को जाने देना चाहिए, इतने को नहीं जाने दिया, और पालिका ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उसने भी देखा नहीं, और पालिका तो ऐसा बोल रही है कि हमको तो मालूम ही नहीं था पुल चालू हो गया। अभी आप सोचोगे नहीं, राजकोट से, अहमदाबाद से हमारे जितने भी पहचान वाले वो सब पुल पे आ रहे हैं 4 दिन से, उस सबको मालूम हो गया था, पूरे गुजरात को मालूम था, लेकिन मोरबी की पालिका को मालूम नहीं था कि पुल चालू हो गया। मैं आप लोगों से मतलब पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछना चाहूँगा, आप लोग वर्किंग डॉक्टर्स हैं, खासतौर से आप लोग गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये अस्पताल इस तरह की ट्रेजेडी से डील करने के लिए इसके पास पर्याप्त सुविधाएं थी? वॉज इट कम्प्लीटली इक्विप्ड? बिकॉज उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई जो शायद एक रात में ही तैयार की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का इसमें दौरा भी होने वाला था। कोई भी अस्पताल इसने इतनी बड़ी सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होती है, मगर जितना भी हमें साधन, हमारे पास मैन पावर है, साधन है, उससे बहुत बढ़िया से मैनेज हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हम सिविल के डॉक्टर तो वहाँ पे ऑलरेडी थे, मगर जब प्राइवेट डॉक्टर इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हाजिर थे ऑलरेडी, उसकी वजह से मैन पावर में कोई कमी नहीं थी, और जितना भी साधन था उसका सही उपयोग किया गया था। मैं बस अंत में आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये घटना कभी भुलेगी आप लोगों से? विल यू बी एबल टू टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ ट्रू ट्रिब्यूट? लोग जो मारे गए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी आप लोगों के हिसाब से? सर, जैसे अभी मैंने जो न्यूज़ में देखा था, माननीय बड़ा प्रधान ने ही भुज के अंदर जो मारे गए 2001 में भूकंप में, उसके लिए एक वन बना है, मतलब वहाँ उसकी यादों में एक स्मारक बना है। तो मोरबी में इससे पहले भी मेरी हिस्ट्री के अनुसार 1979 बना रहा था, स्मारक बनना चाहिए, ऐसा स्मारक आया था। तो उनकी याद में दिल में और दिमाग में उसकी यादें मिटेगी नहीं कभी। तो मैं चाहता हूँ एक स्मारक बने। स्मारक लोगों की याद में रहेगा, लेकिन उनका क्या? क्योंकि बार बार बात ये उठ रही है कि बड़े जो लोग हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर तो कुछ कार्रवाई होने रही। जी सर, अब हमारी तरफ से तो ये है कि जो लोग चले गए हैं उसको तो हम गॉड से प्रे करके उसके लिए श्रद्धांजलि कर सकते हैं, पर उसके पीछे सही तो ये होगा कि ये जिसके हिसाब से हुआ है, जिसकी बेदरकारी उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी मतलब जिसके खिलाफ FIR हुए, जो भी है कि सबको अरेस्ट करना चाहिए, और मिनिमम डेज में उसका चार्जशीट होना चाहिए, फास्ट कोर्ट में केस चालू होना चाहिए, मिनिमम टाइम में उसको पनिशेबल करना होगा, यही होगी। What would you think would be the true tribute for these According people? to me, true tribute will be कि अभी जो हुआ है, राइट, वो जो पेशेंट्स, मतलब जो पर्सन है वो चले गए, उनके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। बट असली ट्रिब्यूट वो होगा कि कॉरपोरेशन अभी जागे, एक्चुअली जो इनमें इन्वॉल्व थे उनको पनिशमेंट मिले, और अगली मतलब नेक्स्ट टाइम से कभी भी इंडिया में कहीं भी जगह पे कॉरपोरेशन ऐसे सोया हुआ नहीं रहे, ताकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो सके। और सेकंड थिंग कि मतलब जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसको पनिशमेंट दे के फिर पीपल भी सो नहीं जाए। यहाँ पे मेरा ऐसा मतलब ये घटना एक एग्जाम्पल बने, so that absolutely people should wake up, corporation should wake up. This should be an example, and possibly an example, right, which I would not want to cover a story like this. It's painful to cover a story like this, where you see so many people, so many families completely destroyed, completely devastated. Meeting families who have lost 7 people, meeting a husband who has lost his wife, his 3 children, a pregnant woman who has lost 2 of her children. It's been a traumatic experience, and this also should be a reminder of how corporations should not be functioning. This should be an example of how things should not be happening. In the end, before I quickly wrap up, Ravi has been our colleague from NDTV on the ground, reporting continuously from the day I came in a day later, but he has been there through the night. Ravi, तुम लगातार 2 दिन से इस पूरे मामले पे रिपोर्टिंग कर रहे हो। सबसे मुश्किल क्या था इस रिपोर्टिंग में, और तुमको लगता है कि ठीक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है?
देखिए जो घटना घटी थी संडे की शाम को, उसमें लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, परंतु जो घटना घटी थी उसमें जो लोगों है उसको डेड बॉडी बाहर निकालने में जो प्रशासन है उसको दिक्कत हो रही थी, साथ में रिपोर्टिंग करने में भी दिक्कत पड़ रही थी, क्योंकि जो लोग मरे हुए थे उसको कैसे बाहर निकाले वो प्रायोरिटी प्रथम दे रह जाती थी। फर्स्ट जो लोग थे उसको रिपोर्ट करें या लोगों की मदद करें? हाँ, वही दिक्कत हो रही थी कि जो रिपोर्टिंग रख के पहले जो लोग थे उसको कैसे बचाया जाए वो सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी। बाद में तंत्र को द्वारा जो कार्यवाही करनी चाहिए वो भी कार्यवाही नहीं कर रहे थे जो प्रशासन ने। He's the man in Morbi for NDTV. I mean, these are our supporters. These are our support journalists, those who are, in fact, giving us all the information. And that, like he was saying, it's difficult to report, in fact, at a time when you would want to go and help, and you also have to capture what is happening. Thank you so much to all of you for the great work that you've done, all these doctors. Thank you for, to these young men, those who tried to save as many. And thank you so much to our viewers for tuning in. I'm Ankit Tyagi, reporting from Morbi for NDTV.